Hello friends, welcome back. Today we are going to see some mathematical problems related to lesson heat. Here is the first type. Problems related to specific latent heat. Here is the first problem. Calculate the amount of heat required to convert 5 gram of ice at 0 degree Celsius into water at 0 degree Celsius. समझो हमारे पास 5 ग्राम ऑफ आइस है और हमें पता है कि आइस का टेम्परेचर क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ओनली. So what is the amount of heat required for this conversion of ice into water? That we have to calculate. And for that, they have given us specific latent heat of fusion of ice. Latent heat of fusion कभी use होगा for conversion of ice into water or vice versa. So latent heat of fusion for ice is 80 calories per gram. So that is given. Let's write the given things first. M mass 5 gram and latent heat of fusion for ice 80 calorie per gram. And what you have to find out? The amount of heat required for conversion of ice at 0 degree Celsius into water at 0 degree Celsius. उस conversion के लिए कितना heat use हो रहा है वो हमें measure करना है by using formula Q is equal to ml. So here is the simple formula substitution. Mass 5 gram and latent heat calorie 80 calorie per gram. So by multiplying it we get the answer 400 calories. So that is the simple mathematical problem. Let's see the second one. Find the amount of heat required to convert 10 gram of water at 100 degree Celsius into steam. अब हमारे पास 10 ग्राम ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस वाटर इनटू स्टीम एंड वी नो दैट टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज आल्सो 100 डिग्री सेल्सियस. सो अगेन देर इज ओनली कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम. द टेम्परेचर इज रिमेनिंग सेम 100 डिग्री सेल्सियस ओनली. सो हाउ मच इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन? वाटर का कन्वर्जन स्टीम में होने के लिए कितना हीट लगेगा? दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला Q is equal to ml. So what are the given things? Mass of water 10 gram and this time they have given you specific latent heat of vaporization of water. Latent heat of vaporization, that is conversion of water into steam or vice versa. That is 540 calories per gram. These two are the given things. And we have to find out amount of heat required for this conversion. So we can find out by using this formula Q is equal to ml. M mass 10 gram multiplied by latent heat of vaporization 540. So simply by multiplying we get 5400 calories. So this thing you have to remember. The latent heat of fusion and latent heat of vaporization you have to remember for water because it may be given or sometimes may not be given. So you have to memorize these two values. Latent heat of vaporization of water is 540 calories per gram and specific latent heat of fusion of ice is 80 calories per gram. Now let's move on to the third problem. So this is the third mathematical problem. Calculate the amount of heat required to convert 15 gram of water at 100 degree Celsius into steam. देखो अभी हमने जो सेकंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया ये प्रॉब्लम भी उसी तरह का है. यहां पर सिर्फ हमें 15 ग्राम ऑफ वाटर दिया है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम. अब स्टीम का टेम्परेचर भी कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस ओनली. सो
we need to calculate amount of heat required for this conversion of water into steam. तो यहां पर कौन सा latent heat यूज होगा? latent heat of fusion या latent heat of vaporization? Yes, you are guessing it correctly. The water is getting converted into steam, so obviously we have to use specific latent heat of vaporization of water, which is 540 calories per gram. So let's write down the given things first. Mass of water 15 gram and specific latent heat of vaporization L is equal to 540 calories per gram. We need to find out amount of heat, that is Q, by using formula Q is equal to ml. We have to simply substitute the values. Mass 15 gram multiplied by latent heat 540 calories per gram. By multiplication, we get 8,100 calories. Here is the fourth mathematical problem. How many calories of heat will be absorbed when 3 kilogram of ice at 0 degree Celsius melt? सेम वही मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, सिर्फ यहां पर मास ग्राम की जगह दिया है हमें किलोग्राम से. सो फर्स्ट राइट डाउन द गिवन थिंग्स. मास m is equal to 3 kilogram. We can convert it into gram, that is 3000 ग्राम. अब क्योंकि आइस है तो उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. When the ice melts, that water will also going to have the same temperature, 0 degree Celsius only. So, how much is the heat? How much calories of heat required for this conversion of ice into water? So again, the ice is converting into water, ice is melting, so we have to use specific latent heat of fusion of ice, that is 80 calories per gram. So again, we have to use the formula Q is equal to ml. Mass is given 3000 gram and latent heat 80 calories per gram. So by multiplication, we get 2,40,000 calories. That much amount of heat will be absorbed. Now you have to remember one thing. This particular formula Q is equal to ml is useful when there is only conversion of one state to another state and no change in temperature. देखो 3 किलोग्राम ऑफ आइस है, उसका कन्वर्जन वाटर में हो रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ. अभी तक हमने जितने भी 4 मैथमेटिकल सम सॉल्व किए, सब में सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है. तो ऐसे में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. Let's move on to the fifth mathematical problem, which is like quite different from these 4. Here is the fifth problem. Calculate the amount of heat required to convert 10 gram of water at 30 degrees Celsius into steam at 100 degrees Celsius. 10 ग्राम ऑफ वाटर दिया है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और उसको हमें कन्वर्ट करना है स्टीम में जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. नाउ दिस प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 4 प्रॉब्लम बिकॉज यहां पर फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है, दैट इज वाटर चेंजिंग इनटू स्टीम. एट द सेम टाइम देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर. पहले वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, अभी 100 डिग्री सेल्सियस हुआ. सो हियर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन 2 वेज. आपको 2 अलग अलग हीट फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम. वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हमारा प्रीवियस फॉर्मूला, दैट इज Q इज इक्वल टू ml. और टेम्परेचर भी राइज हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. एंड एज वी स्टडीड इन द थियरी पार्ट, फॉर राइजिंग टेम्परेचर
टेम्परेचर अगर रेज हो रहा है तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज एम सी इंटू डेल्टा टी। तो इन दोनों से मिलाकर जो मिलेगा वो रहेगा हमारा टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो इस प्रॉब्लम में आपको दो हीट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, and second one, the amount of heat required for rise in temperature from 30 to 100 degrees Celsius. So what they have given to you? Specific latent heat of vaporization of water. पानी का specific latent heat of vaporization दिया है, जो कि हमें पहले से ही पता है 540 calories per gram. And to find out the rise in temperature, they have also given स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी का स्पेसिफिक हीट यानी स्मॉल सी का वैल्यू दिया है उन्होंने 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सो लेट्स राइट डाउन द गिवन थिंग्स फर्स्ट। मास ऑफ वाटर m 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। To find out the rise in temperature, we need to find out the delta T first. Delta T is the difference between the two temperatures. तो पहले टेम्परेचर पानी का था 30 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। Now since there is rise in temperature, to find out the delta T, we have to perform T2 minus T1. फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये डेल्टा T का वैल्यू कभी भी माइनस नहीं आता, हमेशा प्लस वैल्यू होना चाहिए। इसके लिए हमेशा बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू हमें माइनस करना है। तो क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल, सो वी हैव टू राइट इट डाउन एज T2 minus T1, दैट इज 100 minus 30, 70 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर्स। एंड ऑल्सो दे हैव गिवन स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है? 540 कैलोरीज पर ग्राम। नाउ आफ्टर राइटिंग आउट all these things, we need to find out amount of heat required. So here is the new formula. Amount of heat required, Q, is equal to mc delta T. This one is the amount of heat required for rise in temperature. टेम्परेचर जो हमारा चेंज हो रहा है 30 to 100 डिग्री सेल्सियस, वो उसके लिए लगने वाला हीट हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, प्लस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन, जैसे कि हमने पिछले वाले 4 प्रॉब्लम्स में किया। सिर्फ कन्वर्जन के लिए, वाटर टू वेपर, वाटर टू स्टीम कन्वर्जन होने के लिए m इंटू एल, ये फॉर्मूला होगा। तो इन दोनों का एडिशन होगा हमारा टोटल हीट। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। मास ऑफ वाटर 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट C का वैल्यू है 1, डेल्टा T राइज इन टेम्परेचर 70, प्लस मास 10 and latent heat of vaporization 540. Now here on left hand side, multiplication 700 plus 5400, so total addition 6100 calories. That is the amount of heat required to convert 10 gram of ice at 0 degree Celsius, 30 degree Celsius into 100 degree Celsius steam. Now here is the type 2 mathematical problems. Problems based on formula Q is equal to mc delta T. Here is the first problem. How much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kilogram of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius? अब देखिए यहां पर 5 किलोग्राम वाटर है और उस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस करना। उसके लिए इस राइज इन टेम्परेचर के लिए कितना हीट यूज हो रहा है वही हमें कैलकुलेट करना है। सो फॉर राइज इन टेम्परेचर वी हैव टू मेजर, फॉर राइज इन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला Q is equal to m into C into delta T. Let's write down the given things. Mass
that is 5 kilogram, and specific heat of water C is equal to 1 kilocalorie per kilogram डिग्री सेल्सियस। देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का वैल्यू यही रहेगा 1। अगर हमें मास किलोग्राम में दिया है तो हम इसको लिखेंगे किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में। अगर मास ग्राम में दिया है तो हम इसको लिखेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट रिमेन्स द सेम, दैट इज 1 ओनली। देन व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। जैसा कि अभी पिछले प्रॉब्लम्स में हमने किया था, द राइज इन टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2 माइनस T1, 100 माइनस 20 that is 80 degrees Celsius. So we have to find out amount of heat necessary for rise in temperature Q. By formula Q is equal to M into C into delta T. So simple formula substitution is here. Mass 5 kilogram into specific heat 1 and delta T rise in temperature is 80. So by multiplication we get the answer in kilocalorie. So 400 kilocalorie is the amount of heat required. Let's see the second problem. Again it is a simpler one. Find the heat needed to raise the temperature of silver container of mass 100 ग्राम। एक सिल्वर कंटेनर है जिसका मास दिया है उन्होंने 100 ग्राम्स, उसका टेम्परेचर हमें रेज करना है ना, कितने से रेज करना है, बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए कितना हीट लगेगा। अब यहां पर दो टेम्परेचर्स के बीच का डिफरेंस पहले से ही हमें दिया हुआ, दे हैव डायरेक्टली गिवन यू हाउ मच इज द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी हमें पहले से ही कैलकुलेट करके दिया हुआ। So here delta T, rise in temperature directly given 10 degrees Celsius, mass is given 100 gram, and in bracket they have given C, specific heat of silver 0.056 calorie per gram degree Celsius. तो देखो अभी हमारा मास भी ग्राम में है और स्पेसिफिक हीट भी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ। So what we have to find out? Amount of heat required Q is equal to M into C into delta T. Q is equal to mass 100 gram into specific heat 0.056 into delta T 10. See, 100 into 10, 1000. And 1000 multiplied by 0.056, it comes out to be 56 only. So our final answer is 56 calories. Let's see the third mathematical problem of this type. This particular problem is from the exercise. Equal heat is given to two objects, A and B. Both are having equal mass, that is 1 gram only. The temperature of A increases by 3 degrees Celsius and temperature of B increases by 5 degrees Celsius. So which object has more specific heat and by what factor? तो A और B दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कौन से ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है वो हमें ढूंढना है। अब स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन होगा? जो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वही, उसी का क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो लेट्स राइट डाउन द गिवन थिंग्स फर्स्ट। मास M1 is equal to M2 is equal to M, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स A और B दोनों का मास सेम ही है, तो इसके लिए डायरेक्टली हमने लिखा है M is equal to 1 gram. Now rise in temperature for A directly given delta T1 3 degree Celsius and rise in temperature for object B that is delta T2 is 5 degree Celsius. डायरेक्टली उन्होंने rise in temperature ही दिया हुआ है, delta T1 and delta T2. And equal amount of heat is given, that is Q1 is equal to Q2, that is equal to Q. So what you have to find out? Which object has more specific heat and by what factor? तो फिर से क्योंकि यहां पर rise in temperature भी दिया हुआ है तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। Q is equal to M
इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब देखिए ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए कैसा लिखेंगे, Q1 इज इक्वल टू M इंटू C1 इंटू डेल्टा T1, बराबर है। फर्स्ट ए ऑब्जेक्ट के लिए Q1 इज इक्वल टू M इंटू C1 इंटू डेल्टा T1 और सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए Q2 इज इक्वल टू M इंटू C2 इंटू डेल्टा T2। Now, we have to divide these two equations, Q1 upon Q2. So see what happens. M is same, so M1s are क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। Q1 और Q2 का वैल्यू भी सेम है, तो Q1 1s are, तो यहां पर भी क्या आएगा 1। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड में कौन बचा है, C1 अपॉन C2, वो मैंने यहां पर लिखा है। और ये डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2, देखो यहां पर दोनों चले गए तो सिर्फ 1 बचा है, तो ये डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 अपोजिट साइड में चले गए इक्वल टू के, तो क्या आएगा डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1। एंड वी ऑलरेडी नो द वैल्यूज ऑफ डेल्टा T2 एंड डेल्टा T1, दैट इज 5 अपॉन 3। सो C1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 C2। देखो ये C2 यहां पर डिनोमिनेटर में, अपोजिट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। सो देखो C1 इज इक्वल टू 5/3 C2। C1 का वैल्यू C2 से 5/3 टाइम्स मोर, ज्यादा है। दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड वन। सो ऑब्जेक्ट ए हैज मोर स्पेसिफिक हीट देन द बी, एंड बाय व्हाट फैक्टर, 5/3 फैक्टर। सो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रीवियस वन। Here is the fourth mathematical problem. If water of mass 80 gram and temperature 40 degrees Celsius is mixed with the water of mass 20 gram and temperature 30 degrees Celsius. देखो दो अलग अलग वाटर है। फर्स्ट जो वाटर है उसका मास है 80 ग्राम और उसका टेम्परेचर ज्यादा है 40 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे बीकर में जो वाटर है उसका मास है 20 ग्राम और उसका टेम्परेचर कम है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ देयर मिक्सचर। अगर ये दोनों वाटर्स अगर हमने मिक्स कर दी तो उनके मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, राइज इन टेम्परेचर वाला, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। लेट्स राइट डाउन द गिवन थिंग्स फर्स्ट। अब क्योंकि यहां पर दो अलग अलग बीकर्स में दो तरह के वाटर्स हैं, तो इसके लिए हम उसको M1 और M2 मानते हैं। सो फर्स्ट वाटर M1 हैविंग मास 80 ग्राम एंड सेकेंड वन M2 mass of second water having mass 20 gram. The temperature of the first water 80 grams of water is 40 degree Celsius और जो दूसरे बीकर में वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ देयर मिक्सचर, दैट इज ओनली T by using formula Q is equal to M into C into delta T। अब यहां पर यूज होने वाला है principle of heat exchange. Do you remember the principle of heat exchange? Yes, according to principle of heat exchange, the amount of heat lost by hot water and the amount of heat absorbed by cold water will going to remain same. तो यहां पर क्योंकि दो अलग अलग वाटर्स है, एक वाटर जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और उसके कंपैरिजन में दूसरा जो वाटर है उसका टेम्परेचर लो है 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे में जब वो हॉट और कोल्ड वाटर आपस में मिल जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज हॉट वाटर विल गोइंग टू लूज सम हीट एंड कोल्ड वाटर एब्जॉर्ब इट, बट द हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर एंड हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड वाटर विल गोइंग टू रिमेन सेम। तो यही प्रिंसिपल हम यूज करके आगे सॉल्व करेंगे। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे इस हिसाब से, M1 C इंटू डेल्टा T1, M1 C इंटू डेल्टा T1। अब यहां पर मैंने C लिखा है क्योंकि दोनों बीकर्स में वाटर ही है, इसके लिए दोनों का C स्पेसिफिक हीट सेम रहेगा, इसके लिए उसको C1 या C2 अलग अलग नहीं दिया, दोनों जगह पर स्मॉल c ही लिखा है। लेकिन दोनों के मासेस और राइजिंग टेम्परेचर
अलग अलग आएंगे, इसके लिए डेल्टा T1 और डेल्टा T2 अलग अलग लिखा। सो इस फॉर्मूला के हिसाब से M1C डेल्टा T1 फॉर हॉट वाटर एंड M2C डेल्टा T2 फॉर कोल्ड वाटर। नाउ C इज कॉमन, दोनों का सेम ही है, स्पेसिफिक हीट 1 1, सो कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचा M1 इंटू डेल्टा T1। अब ध्यान से सोचो, यहां पर डेल्टा T1 यानी क्या होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, बराबर है। अब कंपेयर करो कि ये जो फर्स्ट टेम्परेचर है, हॉट वाटर का फर्स्ट टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, मिक्सचर का टेम्परेचर यानी T इस T1 से कम होगा या ज्यादा होगा। देखो ये हॉट वाटर है जिसका टेम्परेचर T1 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो ठंडे पानी के साथ मिक्स करने के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। तो ऑब्वियसली मिक्सचर का टेम्परेचर जो भी होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम ही पाया जाएगा। इसके लिए यहां पर डेल्टा T1 का वैल्यू लिखते समय हमने क्या लिखा है, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, दैट इज 40 डिग्री माइनस T1 माइनस T लिखा। वहीं पर जब कोल्ड वाटर के लिए हम लिखेंगे डेल्टा T2, तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर पहले कितना था, T2 का वैल्यू कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब वो हॉट वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में उसके लिए डेल्टा T फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विच इज ग्रेटर देन द प्रीवियस टेम्परेचर, सो T माइनस T2। Then, after writing these values of delta T1 and delta T2, we have to simply multiply into the bracket. M1 T1 minus M1 T equal to M2 T minus M2 T2. अब यहां पर M1 T1 और M2 T2 हम अलग ले लेते हैं। देखो M1 T1 एज इट इज, ये माइनस M2 T2 अपोजिट साइड में आएगा तो क्या आएगा, plus M2 T2. Similarly, this minus M1 T goes to another side become plus and M2 T as it is. अब इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, T, तो ब्रैकेट में कौन बचा, M1 प्लस M2। तो इन दोनों में से T कॉमन ले लिया, देखो यहां पर मैंने लिखा है, तो ब्रैकेट में बचा M1 प्लस M2 goes to another side and here it goes in denominator, तो क्या आएगा M1 T1 plus M2 T2 divide by M1 plus M2, देखो यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्टली। नाउ सिंपली वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज टर्म्स। M1 80 ग्राम इंटू T1 40 प्लस M2 20 ग्राम प्लस T2 30 डिग्री एंड इन द डिनोमिनेटर 80 प्लस 20। अब इसको और थोड़ा इजी करने के लिए हम इसको डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हैं, 80 इंटू 40 अपॉन 80 20 दैट इज 100 प्लस 20 इंटू 60 अपॉन 100। अब यहां पर सभी जीरोस कैंसल हो गया, सो क्या बचा, 8 2 जार 8 4 जार 32 प्लस 3 2 जार 6। सो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 38 डिग्री सेल्सियस। Now here is the fifth mathematical problem. It is similar to fourth one. When a water of mass 70 gram and temperature 50 degrees Celsius is added to water of mass 30 gram, the maximum temperature of the mixture is found to be 41 degrees Celsius. देखो यहां पर भी फिर से दो अलग अलग वाटर है, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। हॉट वाटर जो है उसका मास दिया है 70 ग्राम और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने कोल्ड वाटर के साथ ऐड किया। कोल्ड वाटर का सिर्फ मास दिया हुआ है 30 ग्राम, उसका टेम्परेचर यानी T2 हमें फाइंड आउट करना है। और दोनों हॉट वाटर और कोल्ड वाटर आपस में मिक्स करने के बाद जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का टेम्परेचर T हमें दिया है 41 डिग्री सेल्सियस। So you have to find out the temperature of water of mass 30 gram before hot water added to it. गर्म पानी में ऐड करने से पहले इस 30 ग्राम वाटर का
टेम्परेचर क्या था, T2 का वैल्यू क्या था, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसी टाइप का प्रॉब्लम है जैसा अभी हमने फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व किया था। लेट्स सी द गिवन थिंग्स फर्स्ट। मास ऑफ हॉट वाटर M1 70 ग्राम एंड मास ऑफ कोल्ड वाटर M2 30 ग्राम। टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर 50 डिग्री सेल्सियस and temperature of cold water T2 we don't know, that you have to find out, and instead they have given temperature of mixture that is capital T. अब देखो फिर से मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो यहां पर ये है हॉट वाटर दैट इज T1 और यहां पर है ये कोल्ड वाटर T2 और ये है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब ये हॉट वाटर है तो ऑब्वियसली हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा मिक्सचर के टेम्परेचर से, और क्योंकि T2 कोल्ड वाटर है तो कोल्ड वाटर जब हॉट वाटर में मिक्स किया जाएगा तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो मिक्सचर का टेम्परेचर कोल्ड वाटर से ज्यादा होगा। अब इस वजह से जब हम डेल्टा T1 फाइंड आउट करें, डेल्टा T1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, T1 माइनस T, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। वहीं पर जब हम डेल्टा T2 कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T नहीं करेंगे, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर दैट इज T माइनस T2। समझ में आ रहा है? ये डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा T1 या डेल्टा T2 का वैल्यू हमेशा प्लस रहना चाहिए। इसके लिए हॉट वाटर का टेम्परेचर से मिक्सचर का टेम्परेचर कम रहेगा, इसके लिए डेल्टा T1 फाइंड आउट करने के समय हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस T। और डेल्टा T2 कोल्ड वाटर के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम T2 माइनस T नहीं करेंगे, T2 का वैल्यू कम है, मिक्सचर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसके लिए हम लिखेंगे T माइनस T2। तो ये आगे फॉर्मूला में हमें यूज होने वाला है, इसके लिए मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। पिछले वाले प्रॉब्लम में भी यही था। देखो अब हमें ये T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। सो अगेन वी हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, द हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर मस्ट बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड वाटर। सो अगेन वी हैव टू राइट डाउन M1C इंटू डेल्टा T1। देखो यहां पर क्या लिखेंगे हम, M1C डेल्टा T1 और यहां पर M2C डेल्टा T2। अब फिर से क्योंकि यहां पर दोनों तरफ स्पेसिफिक हीट पानी का ही है तो C कैंसल हो जाएगा, M1 एज इट इज, और डेल्टा T1 याद है हमने क्या कहा था, यहां पर डेल्टा T1 के लिए हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस T, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, और सेकेंड वाले डेल्टा 2 के लिए क्या लिखेंगे, T माइनस T2। देन द कैलकुलेशन बिकम्स इजियर, वी हैव टू मल्टीप्लाई into the bracket with M1, so M1T1 minus M1T equal to M2T minus M2T2। अब यहां पर हमें T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, T2 का। इसके लिए ये टर्म माइनस M2T2 यहां पर हम लिखे हैं तो क्या हुआ, ये प्लस, और ये दोनों टर्म्स हम अपोजिट साइड में लेके जा रहे हैं। सो दिस M1T minus goes to another side and become plus M1T. This M2T as it is, and this plus M1T goes to another side becomes minus M1T. अब यहां पर इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, T, तो ब्रैकेट में क्या बचा, M1 प्लस M2 माइनस M1T। अब हमें क्योंकि सिर्फ T2 का वैल्यू चाहिए तो ये M2 भी अपोजिट साइड में आकर डिवाइड हो जाएगा। यहां पर लिखा हमने डिनोमिनेटर में M2। अब आगे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, 70 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय T टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 41 माइनस M1 इंटू T1 70 इंटू 50 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय मास ऑफ सेकेंड वाटर 30 ग्राम। आफ्टर मच कैलकुलेशन वी गेट 4100 minus 3500 upon 30. After subtraction we get 600 upon 30 which is 20 degree Celsius.
तो जो कोल्ड वाटर है तो वो उस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर T2 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस।